जब आप इसको डायरेक्ट कर रहे थे तो किन किन बातों का आपने ध्यान रखा था कि कैसे ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएगी पिक्चर? सब्जेक्ट ही इतना स्ट्रॉन्ग था, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मुझे पूरा यकीन था कि जब ऑडियंस देखेगी, जब वो इन कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि कैरेक्टर्स जो थे, जो मीरा का कैरेक्टर है बहुत आइडेंटिफाइबल है, स्पेशली एक अर्बन ऑडियंस के लिए। और उनके साथ साथ जो जिस जर्नी पे मीरा और अर्जुन जाते हैं, ऑडियंस भी उनके साथ उस जर्नी पे है। तो जहाँ तक कि एज अ डायरेक्टर मैं जिस चीज़ों का ख्याल रख रहा था, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि जो ऑडियंस जब देखेगी वो एकदम इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करके इनके साथ उस जर्नी पे जाएंगे। कृष्णा जी, कई सारे एक्टर प्रोड्यूसर बन रहे हैं, हमने देखा अनुष्का शर्मा प्रोड्यूसर बनी, आप भी प्रोड्यूसर हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप कंपटीशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है? नहीं, कंपटीशन क्या है? एज अ वुमेन, many if somebody is joining, especially an actor who believed in the script. Anushka, why would she produce a film? Because she believed in Navdeep, she believed in the script. She's taken such a step to as producing a film. There must be a reason. So it's nice that somebody also believes, especially an actor also believes. So hand in hand, we worked very well. Navdeep, this is after 16 months. This is your first commercial success, we can say. So now onwards, while making a movie, what would you focus on? Like the film should be critically good, or you will look for like box office? No, I still follow my heart. I think you have to like the subject you're working on and believe in the subject you're working on. जहाँ तक कि critical success है या box office success, I think if you make a film honestly and you make it with your heart, people recognize that and hopefully you get both. ये क्वीन रिलीज हुई, उसमें कंगना का एक अच्छा कहानी में विद्या बालन, अब अनुष्का, तो आपको नहीं लगता कि जो हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में हैं उनका चलन बॉलीवुड में बढ़ता जाएगा? बिल्कुल, और बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमारी जो देश की जनता है, दिस 50% वुमेन एंड ऑडियंस मस्ट बी एटलीस्ट 30-40% वुमेन। तो वुमेन के लिए भी फिल्में बननी चाहिए जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करती हैं मेन कैरेक्टर के साथ। आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट कितना नेसेसरी है? It is equally important and good that the audience are loving women-centric films. And it's earlier it used to be only hero-centric. Now we have women-centric also. So it's good to see that Bollywood is enjoying different kind of genres, which is and accepting such kind of genres too. प्रोड्यूसर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको सिर्फ हीरोज के पीछे नहीं भागना पड़ता, वो हीरोइन भी मिल सकती है जिसके आप किन पैरामीटर्स को देखती हैं कोई फिल्म प्रोड्यूस करते वक्त? मेनली सबसे बड़ा हीरो और सबसे बड़ा चीज़ है कि स्क्रिप्ट. My script is a hero. If the script is very good and I believe in the script, we all believe in the script, and after that everything follows. आपको बिलीव था कि फिल्म इतनी सक्सेस होगी? हाँ, बिलीव था, लेकिन you always are little scared कि how the audience will take, because till date we cannot judge the audience. We make good films, we want to make such kind of films that we believe in, but only when you release it, then you realize कि yeah, we've gone in the right direction. अनुष्का ने अपनी इमेज के साथ एक चेंज किया, इमेज क्योंकि उनकी एक लवेबल इमेज थी और अब वो इंटेंस लुक में है, तो कितना एक्सपेरिमेंटल उनके लिए था करना? She's performed brilliantly. I just enjoyed her performance. She was, I'm sure the audience are loving it because she was good, and undoubtedly she was brilliant. So as an actor, she would always like to touch different kind of genres. She's done as we've seen her earlier performance too. So it's good to touch all kind of genres as a heroine. Navdeep, after NS10, what kind of a genre you will prefer? Like this is a real, like a real story. So what would you prefer, real or fiction? As a director, I'm open to all genres, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ड्रामा हो. It's really again the subject. जो उस genre के अंदर जो script है, it has to touch me somewhere within my heart. I have to believe कि ये interesting कहानी है. So any plans to work with Anushka again? 100%, 100%. How was it working with Anushka? Like she's a star when you started doing movie, and as compared to her, you were like a little newcomer into direction. So was it any tantrum, or as a producer, what would you like to say about Anushka working with her? It was equally good working with all the producers too, because all were creative producers. So at Anushka also, I would say she's very creative too. It was fun working with her. तो कब तक आ जाएगी part 2 10 minutes?
May 29th we're planning to release Tanu as Manu season 2. नवदीप, अनुराग कश्यप एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में एक जोन में चलती हैं, तो हम आपको भी उसी तरह के देखेंगे आने वाले भविष्य में। जैसे अभी एनएसएन भी एक उसी प्लेटफॉर्म पे अगर देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी जैसे रियलिस्टिक में बात करूँ तो वो कितना मायने रखता है रियलिस्टिक बनाना फिल्म? मेरा ऐसा नहीं है कि आई थिंक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। कोई सब्जेक्ट बहुत रियलिस्टिकली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि वो सब्जेक्ट एक किस्म का है, किसी इम्पोर्टेंस का है। जैसे कि ये जिसमें इसमें ऑनर किलिंग वगैरह चीज़ मेरे को लगा था कि इसको एकदम रियलिस्टिकली करें तो उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। बट कई फिल्में होती हैं या कई स्टोरीज होती हैं जिसमें रियलिज्म की ज़्यादा फैंटेसी की ज़रूरत होती है या कुछ ग्लैमर की ज़रूरत होती है। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। हाईवे भी आई थी आलिया भट्ट, तो वो भी एक जोन था। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की फिल्मों का एक जोन आ रहा है जो रियलिस्टिक अगली अभी आई थी आपने देखा, तो कितना मायने रखता है ये बॉलीवुड के लिए? बहुत ज़्यादा। आई थिंक कि आजकल ऑडियंस बहुत सारा स्पेशली बिकॉज ऑफ सैटेलाइट एंड टेलीविजन उन्हें बहुत सारे अभी अलग अलग किस्म की फिल्में उनको देखने को मिलती हैं, फॉरेन फिल्म वगैरह, तो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गई है अब ऑडियंस। और उनको भी अपने लोकल कंटेंट में चाहिए कि बहुत अलग अलग किस्म की चीज़ें मिलें उनको। तो आई थिंक ऑडियंस टेस्ट चेंज हो रहा है। इसलिए आप बॉलीवुड क्या आप तैयार हो चुका है रियलिस्टिक फिल्मों के लिए पूरी तरह से? क्योंकि अब तक क्या होता कि फैंटेसी दिखाई जाती थी, लव दिखाया जाता था, प्यार दिखाया जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से चेंज हो रहा है। अब आप लोग भी ये जान गए हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं। नहीं, हम अभी भी नहीं जान पाए कि लोग क्या देखना चाहते हैं, बिकॉज लोग अभी भी लव स्टोरी देखना चाहते हैं, लोग अभी भी ऐसे रियलिस्टिक देखना चाहते हैं, हर काइंड ऑफ जॉनर्स देखना चाहते हैं। एक सब्जेक्ट पे हम अटक नहीं सकते, हमको हमेशा डिफरेंट सब्जेक्ट ट्राई करना चाहिए। आप दोनों लोग से बारी से जानना चाहूँगा कि अगर कंटेंट किंग होता है तो हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्में क्यों चलती हैं, दबंग जैसी फिल्में क्यों चलती हैं? जैसे मैंने अभी कहा, वी हैव टू ट्राई, ऑडियंस लव, you cannot judge the audience, they like different kind of genres. Sometimes you know everybody has some problem in their life, nobody is like happy go lucky कि कुछ नहीं हो रहा है मेरे life में. You just want to leave your brains behind sometimes and just watch something and just enjoy and come. So as we are from this industry, we have to touch different kind of genres, entertain people. Some people like to be entertained with comedy, some people like to be entertained with realistic. People are enjoying all kind of genres because you need variety. Variety is the spice of life. Variety बहुत important है, I think स्पेशली क्योंकि अगर आप इसको एक कंपैरिजन लेके, जैसे कभी हमें गोलगप्पे खाने का मूड करता है, कभी समोसे खाने का मूड करता है, कभी दाल चावल खाने का मूड करता है, अलग अलग चीज़ें, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार आप नहीं खा सकते, क्योंकि कभी आप चिकन खाएंगे तो कभी आपको सड़क से सैंडविच भी मन करता है कि सड़क वाली सैंडविच खानी है। तो ऑडियंस उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करता है, आप लोगों को कहने का यही मतलब है जी। कोई भी ऑडियंस जैसे सलमान दबंग में जो रोल करे, नहीं इतना ही नहीं है कि ऑडियंस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करे। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रस मिलता है, एक अलग अलग फीलिंग आती है। आप दबंग देखें, आप बहुत एंटरटेन्ड होते हैं, आपको सलमान खान बहुत कूल लगते हैं, वो जैसे वो अपने गॉगल्स पहनते हैं उससे मज़ा आता है, तो वो एक अलग एक अंदाज है, एक अलग फीलिंग आती है उसको देख के। पर आप जब सलमान का पिक्चर देखने जाते हो, यू एक्सपेक्ट दैट ओनली कि he is going to entertain us full too, and you enjoy that, you want to see that, so obviously. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. Backup.